Hello friends, this is Vishakha Dagar. Coming up with next round of current affairs. अच्छा friends से मुझे याद आया. You might have all of you might have seen Friends, and then you might have remembered the character Joey. Yeah, this cute little face Joey. But then Joey had the problem. Joey knew little about the current affairs, और क्योंकि उसको current affairs के बारे में बहुत कम पता था, he used to be seemed like, not used to be, but used to seem like the dumbest in the room. And often आप इस social media user होंगे और काफ़ी ज़्यादा social media use करते होंगे, but you might have found yourself knowing less about the topic कि topic चल रहा है but आपको बहुत कम पता है, आपके friends उसके बारे में chat कर रहे हैं और आपको उसमें alone feel हो रहा है. And then all of a sudden later on when things are discussed and things have happened, maybe वो चीज़ आपको भी impact करने वाली थी but आपको नहीं पता था. And later on, realization like this might have come to you. Oh, like this Joey face. So this is what I'm talking about. So this entire session is about educating yourself what is going on and why something is very viral और सभी लोग उसमें क्यों tweet कर रहे हैं. So after knowing this, you may not have to come up with this face at the end of it. Instead, you may be the smartest one in the room. So let's educate you. Let's make you smartest in the room. So let's understand. सबसे पहले is there is a news. Delhi police approaches the Supreme Court against bail to 3 student activities in UAPA. अब UAPA एक्ट क्या है, ये 3 एक्टिविस्ट क्या हैं और इतना सारा ट्विटर में क्यों चल रहा है, बिकॉज दिस इज ट्रेंडिंग इन ट्विटर. यू कैन सी सो मेनी ट्वीट्स ऑन दिस. लाइक द वायर हैज़ टॉक्ड अबाउट कि इट इज़ एन एंग्जाइटी टू सप्रेस डिसेंट एंड और स्टेट अपनी लाइन्स भूल चुकी है. वो भूल चुकी है कि वेयर इट इज़ अ टेररिस्ट एक्टिविटी एंड वेयर इट्स सिंपली अ राइट टू प्रोटेस्ट. तो कहाँ राइट और प्रोटेस्ट मतलब अपने अगेंस्ट वो कुछ भी किसी भी तरीके का डिसेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और राइट को प्रोटेस्ट को टेररिस्ट डिक्लेयर करके इट इज़ putting the activist into the jail. Again, even Indra Jaising is talking about this. She's a very famous lawyer and she says it is a ghost of UAPA that been put to rest by Delhi High Court because UAPA has been used for a long time to suppress any kind of dissent. तो किसी भी तरीके का जब प्रोटेस्ट होता है तो UAPA को बहुत आसानी से यूज़ किया जाता है किसी भी तरीके को प्रोटेस्ट को रोकने के लिए. Now it is known, this is something I can tell you, state is always very powerful in comparison to citizen. अगर कभी भी citizen से compare किया जाए तो आपकी state बहुत powerful होती है. And state often when it is not able to deliver, it is very common कि citizens फिर उसको criticize करते हैं. And when state is intolerant to that kind of criticism, it resort to tools like UAPA. अब मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा सेम फीलिंग है, सब सेम यही ट्वीट कर रहे हैं पर अभी तक मुझे समझ में नहीं आया. नाउ लेट्स गो अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई सो मेनी पीपल आर ट्वीटिंग अबाउट दिस. लाइव लॉ, प्रशांत भूषण, इंडिया टुडे, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. दिस इज कंप्लीटली ऑन द ट्विटर, ऑन द फेसबुक एंड ऑल अदर वेबसाइट्स. So let's understand कि what is it, कि UAPA है क्या. To understand, UAPA has always been used to curb the dissent, किसी भी तरीके को प्रोटेस्ट को रोकने के लिए. And that's why, in fact, Frontline, which is actually the branch of the Hindu newspaper, it talked about a time ago, it came up with a heading that how UAPA is being used as a tool of coercion in Kashmir. लोगों को चुप कराने के लिए यूज़ किया जाता है. Then again, in Hindu, some time ago, there was this news that in parliamentary proceeding, over 72% rise in the number of UAPA registered cases. तो UAPA के अंदर जो cases registered हो रहे हैं वहाँ पे 72% rise can be seen. That means more frequently is government is resorting to UAPA. तो इतना सब कुछ हो गया. लेट्स अंडरस्टैंड वेयर डज इट ऑल स्टार्टेड कि ये जो 3 एक्टिविस्ट हैं, नताशा, देवंगना एंड आसिफ, व्हाई आर दे बिहाइंड द बार्स, ये जेल में क्यों थे और अब इनको बेल क्यों मिली है. एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज UAPA एक्सेट्रास. एंड दिस सेगमेंट इज गोइंग टू एजुकेट यू सो दैट यू विल बी स्मार्टेस्ट इन द रूम. Now let's move ahead. सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ. अब कहाँ से शुरू हुआ से बात करते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट has called out the misuse of UAPA. दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि जो UAPA है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है and government is forgetting, like Delhi it says that कि the act is too liberally defined. इसको इतना liberally defined किया गया है कि normal case of disturbance of law and order, यहाँ पे जो law and order है that is also treated as what, terrorism. नॉर्मल डिस्टर्बेंस हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर में और उसको भी टेररिज्म ट्रीट किया जा रहा है. गवर्नमेंट हैज़ फॉरगॉटन द लाइन. दैट्स व्हाई द दिल्ली हाई कोर्ट सेज कि इफ
some law has stringent penal provision, then it must be more strictly it must be construed. जितना penal ज़्यादा strict इसके penal provision है, उतना strictly ही इसको construe करना चाहिए. जैसे अगर कोई death penalty दे रहा है तो उसको प्रसाद की जैसे थोड़ी ना पार्ट देना है कि चलो death penalty है तो इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, इसको भी दे दो. नहीं नहीं, if any law is giving you more severe punishment तो उसका उतना ही strictly construe करो. ऐसे नहीं कि आप हर केस में उसको लेकर आ रहे हो. The court also talked about कि differentiate in between normal law and order scenario and terrorist activity. Simply कोई भी artist या फिर कोई भी activist protest कर रहा है उसको law and order issue देखा जाए, ना कि terrorist activities. And then court made a reference to the several previous judgments. Court actually talked about not one, not two, but 3 judgments, जहाँ पे previously same topic को बात किया गया है. It says the extent and reach of terrorist activity must be that it travel beyond the capacity of ordinary law. Not just, अब इसको यहाँ पे समझिए. मैं आपको समझा देती हूँ. इसने बोला पहली बात लॉ को इस तरीके से, मतलब जो लॉ है रिगार्डिंग टेररिज्म शुड बी कंस्ट्रूड, मतलब उसको ऐसा समझा जाए कि आप टेररिज्म इज इक्वल्स टू लॉ एंड ऑर्डर सिनेरियो ना करें. लॉ एंड ऑर्डर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, उसको अलग डील करो, और टेररिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, उसको अलग डील करो. मतलब इतना आप लाइंस को ना ब्लर मत करो कि आप नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर थिंग को टेररिज्म ट्रीट कर रहे हो. Similarly, it talked about the capacity of enforcement agency कि these kind of activities are those terrorist activities वो होती हैं जो कि normal law enforcement agencies नहीं डील कर पाती. इनके लिए स्पेशल फोर्स होती है, स्पेशल टास्क फोर्स है, NSG है, या फिर स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज हैं जो कि टेररिज्म से डील करते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, उन केसेस को भी पुलिस ऑफिसर, नॉर्मल पुलिस ऑफिसर जो कि लॉ एंड ऑर्डर से डील कर रहे हैं, बेचारे उन्हीं को, मतलब दे आर बीइंग आस्क्ड टू डील विद द टेररिज्म एज वेल. तो टॉक्ट अबाउट कि ओनली दोज एक्टिविटीज शुड बी ट्रीटेड एज अ टेररिज्म जो कि नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसीज उनको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं. तो समझ में आया, अगर नॉर्मल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको फुलफिल नहीं कर पा रही, इट इज बियॉन्ड दैट जुरिस्डिक्शन, तो उसको टेररिस्ट एक्टिविटी डील करो. सो दिस इज हाउ दिस जजमेंट हैज कम इनटू बीइंग. फिर करतार सिंह केस आया, उसने बोला कि Kartar Singh also talked about that there has been misuse of the provisions like that. This anti-terror law, ये जो है, इससे पहले तारा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1987, ये भी इतना ही मिसयूज होता था, एंड ऑल ऑफ देम डेल्ट विद अनलॉफुल एक्टिविटीज. Then court also talked about how there is an NIA versus Zahoor Ahmed Watali case of 2009. It talked about only if there is a prima facie evidences that deny the bail. मतलब इतने strong evidences हैं कि अगर इस पर्सन को बेल दे दी गई तो बिल्कुल टेररिस्ट एक्टिविटी होगी ही ज़रूर, तो ही बिल डिनाई करो, नहीं तो अदरवाइज बेल शुड बी द नॉर्म. एंड दिस इज व्हाट लाइक सेइंग. आप हमेशा याद रखिए, बेल इज नॉर्म. नॉर्मली बेल मिल जाती है, जेल इज एक्सेप्शन. मतलब दिस इज व्हाट शुड बी गाइडिंग जुडिशरी कि मतलब नॉर्मल जितना हो सके जुडिशरी शुड ट्राई टू गिव द बेल अनलेस अनटिल द पर्सन विल बी थ्रेट इफ ही इज लेफ्ट इन द सोसाइटी. अगर किसी को सोसाइटी में छोड़ दिया गया और वो पूरी सोसाइटी के लिए थ्रेट बन जाता है, तभी उसको बेल डिनाई की जाती है. तो सेम थिंग दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे बोला. एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द 3 क्या हुआ, The 3 activists has been freed right now. यहाँ पे नताशा है, यहाँ पे देवांगना है, and other one is Asif. Now let's understand कि why these guys were in jail at first place. ये जेल में पहुंचे कैसे ये सारे के सारे. Now पहले first of before understanding that, let's understand कि this was one significance कि तीनों को जेल से छोड़ दिया गया. What are the other significance of the ruling? Now the other significance of the ruling is that it called out the alleged misuse of UAPA कि UAPA ना आपका बहुत मिसयूज हो रहा है. सो बिकॉज फर्स्ट टाइम कोर्ट ने सीधे बोला है कि आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ को या इस तरीके के लॉस को बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हो. सो इट हैज़ रेज द बार ऑन स्टेट टू बुक एन इंडिविजुअल फॉर टेररिज्म. तो अब स्टेट ना आसानी से जाके किसी को उठा सकती है कि चलो आपने अरे आपने हमें हमारे अगेंस्ट क्रिटिसाइज किया, आपको जेल में डालते हैं. वो भी किस प्रोविजन पे, टेररिज्म is a very serious crime, unlike the criticism of government which is simply an act of dissent. आप जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो तो आप सब गवर्नमेंट को
क्रिटिसाइज कर रहे हो, इट्स एन एक्ट ऑफ डिसेंट, इट इज पार्ट ऑफ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इज नॉट अ टेररिस्ट एक्टिविटी. सो बाय दिस रूलिंग दो चीजें हुई हैं. पहली बात क्या हुआ, द कोर्ट हैज एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द मिसयूज, कि ना यूएपीए मिसयूज हो रहा है. उसके बाद कोर्ट ने क्या बोला, नाउ स्टेट सिंपली जाके किसी भी इंडिविजुअल को जाके अरेस्ट नहीं कर सकती टेररिज्म के लिए, देयर हैज टू बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. That's what this ruling has done. It has put limit on the state power in terms of कि वो law को कैसे interpret करे और executive action. I said ना two things. पहली बात, law को ऐसे interpret करो कि normal law and order scenario को आप terrorism नहीं deal कर रहे हो, और तभी टेररिज्म डील करो जब नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको डील नहीं कर पा रही हैं, राइट. दीज टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. बस यही ध्यान रखना है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट यही थी. अब लाइक एज आई सेड कि बेचारे या ना बेचारे, ये तीनों के तीनों पहले जेल के पीछे पहुंचे कैसे, वाई दीज थ्री पीपल वर बिहाइंड द बार. टू अंडरस्टैंड इट, लेट्स गो बैक टू 2019. नाउ 2019 anti-CA protests were taking place around Jamia Millia Islamia, then AMU, and then entire country was in the gulf of it. सभी प्रोटेस्ट, बहुत सारे लाइक मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज अंडर द प्रोटेस्ट. काफ़ी एक्टिविस्ट सामने आए थे. स्वरा भास्करा, दीपिका पादुकोण रीचिंग द JNU, एंड सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग एट दैट टाइम राइट नाउ. And one fine night, there was a clash between pro and anti-CA protester in Northeast Delhi. और उसमें काफ़ी जाने गई थी. Around 40 to 50 people died at that time. And if you talk to people living in Delhi, that day was a nightmare for them because रात में लोग सड़कों पर आ गए थे. At that time, when Delhi government, like not exactly the Delhi government, when Delhi police was conducting the inquiry that why did it happen, इसने 3 एक्टिविस्ट को ही नैब कर लिया और उनको जेल में डाल दिया, saying that these people had the role in the Delhi riot conspiracy case, now which is contested because at that time बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे वीडियोज़ आए थे, बट मे बी ओरिजिनल पीपल वर नॉट अरेस्टेड एंड द एक्टिविस्ट वर पुट बिहाइंड द बार. जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टर्स को जेल में डाल दिया गया था, विच इज़ बीइंग सेड कि द इंटायर इन्वेस्टिगेशन वॉज वेरी फिशी, बट दिल्ली हाई कोर्ट उसमें नहीं गया था. प्रोटेस्टर्स वर एक्चुअली पुट बिहाइंड द बेल एंड राइटर्स माइट हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड. अब उस केस में इन तीनों को, नताशा, नरवाल, देवांगना और आसिफ इकबाल को जेल में डाल दिया गया था. एंड व्हाट वर लाइक, किस चीज़ को यूज़ किया गया था, UAPA एक्ट वॉज यूज टू पुट देम इन जेल. तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये तीनों जेल में क्यों गए. अब ये तीनों जेल से बाहर क्यों आ गए ये भी समझ में आ गया, पर अब तक ये UAPA वाली बला समझ में नहीं आई है. तो लेट्स गो अहेड और जरा इस UAPA को ही समझते हैं. Now UAPA, also called Unlawful Activities Prevention Act, originally 1967 में आया था टू प्रिवेंट द अनलॉफुल एक्टिविटीज़, जैसे आपका टेररिज्म हो या फिर सेसेशन हो, लाइक टेरिटरी हो, फ्रॉम द टेरिटरी, इंसर्जेंसी हो, मतलब आप कंट्री के खिलाफ नारे निकाल रहे हो, आप और किसी तरीके की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपका UAPA आया था. नाउ इट वॉज फाउंड लेटर ऑन that UAPA was insufficient according to government. तो ये लोग फिर टाडा लेकर आ गए, which was like Terrorist and Destructive Activities Prevention Act, जो कि 1995 में लैप्स हो गया. Government then came up with POTA, that is Prevention of Terrorism Act 2004. Until 2004 unlawful activities का मतलब था anything that is related to secession or like secession of a territory. अगर आप देश के मतलब टेरिटरी के अगेंस्ट चले जाते हो, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ इसमें, खालिस्तान. अब खालिस्तानी मूवमेंट बोलता है कि नो इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान शुड बी डिक्लेयर अ सेपरेट स्टेट. यहीं पे हमारा नागालैंड है, नागालैंड कहता है कि नागालिम अ ग्रेटर नागालिम शुड बी फाउंड विच इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया. पहले एक द्रविड़स्तान मूवमेंट भी था, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू फॉर्म अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इंडिया. नाउ दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, इस तरीके की एक्टिविटीज़ आर अनलॉफुल एंड एक्ट एज अ थ्रेट टू द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटायर लाइक कंट्री की इंटेग्रिटी के अगेंस्ट हो जाती है. तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए आपका UAPA आया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. नाउ व्हाट हैपेंड, 2004 में इसको अमेंड कर दिया गया. And in the amendment, Terrorist Act was added to the list of offences. अब Terrorist Act डाल दिया गया है इसमें.
Now, the section 15 defines terrorist act is punishable with imprisonment of at least 5 years. 5 साल की punishment देता है, death penalty भी देता है, absolute power to the central government देता है, by which they can declare someone as a terrorist. And it also, what is troubling in here, जरा इस चीज को ध्यान से देखें. The investigative agency can file a charge sheet within 180 days. मतलब for 180 days an agency can wait to file a charge sheet. वो उसको अंदर रख सकते हैं, उसको पीट सकते हैं, उससे सवालात पूछे जा सकते हैं और उसको परेशान भी किया जा सकता है. For 180 days तो they may not have to file a charge sheet, पर 180 days के अंदर अंदर उसको कर भी देना है. They can extend the jurisdiction अगर, या फिर duration अगर कोर्ट एक्चुअली सेज कि चलो कर दो. अगर कोर्ट ने बोला कि 180 डेज से भी ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हो तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मे बी 180 डेज के बाद भी चार्जशीट ना फाइल करें. और ये आपका इंडियन और फॉरेन दोनों नेशनल्स के लिए अप्लाई होता. तो ये इसके लिए एक पावर है. लाइक दिस इज हाउ UAPA वर्क्स. नाउ व्हाट हैपन रिसेंटली, इसको अमेंड भी कर दिया गया था, where individual can also be designated as a terrorist, and this is how the problem has started. पहले ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डेजिग्नेट करते थे, राइट? ऑर्गेनाइजेशन लाइक ISIS, लाइक अलकायदा और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. अब इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई नताशा एंड एवरीबडी हैज बिकम विक्टिम ऑफ इट. क्योंकि पहले क्या होता, पहले दे हैव टू स्टैब्लिश कि बताओ अगर ये टेररिस्ट हैं तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, कि ISIS के साथ काम कर रहे हैं, अलकायदा के साथ काम कर रहे हैं, मुजाहिदीन के साथ काम कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं. नाउ दे डोंट हैव टू, दे सिंपली हैव टू पुट अ टैग ऑफ टेररिस्ट ऑन एन इंडिविजुअल और उसको जेल में डाल सकते हैं. दिस इज हाउ, एंड दिस entire amendment has become troubling. Other amendment include कि it has given the power to the Director General of NIA to seize और attach the property जिसको इन्होंने terrorist declare किया है, उसकी property को seize कर सकते हैं. Also, an NIA officer of the rank of inspector or above can investigate the case of terrorism. पहले ये power सिर्फ DSP और ACP के पास होती थी. Now these are the acts. आप याद रख सकते हैं तो रखिए, ना रख पाए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेट्स मूव अहेड. आगे समझते हैं थोड़ा सा. Now the terror clause in UAPA can be invoked not just for the to intend to threaten the unity and integrity. पहले इसीलिए होता था कि if you're threatening the unity and integrity of the country. अब मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था ना, लाइक इफ दिस वाज इंडिया तो खालिस्तानी मूवमेंट यहाँ शुरू हुआ था, द्रविड़स्तान मूवमेंट यहाँ शुरू हुआ था और नागालैंड मूवमेंट यहाँ शुरू हुआ था. And in all these kind of activities, it was threatening the unity and integrity of India. कि हमारा भारत एक है, we all live together. उस एजेंडा को थ्रेटन करता है, तो we were using the act against those individual and organization. बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अमेंडमेंट हुआ और इसकी जुरिस्डिक्शन को बढ़ा दिया गया. Now any activities that cause a damage to life and property can also be taken as a terrorism, और उसको भी इसमें लेकर आ चुके हैं. This is troubling. अब आते हैं, in this entire troubling act, why should it concern you? As I said, you don't want to be Joey who's getting everything at the end of it. No, you want to be the smart one in the room. So you should be aware कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों कंसर्न कर रहा है ये. The reason it concern is because it threaten your fundamental right. आपके मूलभूत अधिकारों के अगेंस्ट चला जा सकता है ये, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के सस्टेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने फंडामेंटल राइट्स को भी बचाना होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कौन कौन सा आपके जो फंडामेंटल या मूलभूत अधिकार हैं उनका हनन यहाँ पे हो रहा है. तो सबसे पहले देखते हैं आपका द फर्स्ट आर्टिकल इट थ्रेटन्स इज द आर्टिकल 21, दैट इज विच गारंटीज इंडिविजुअल लिबर्टी. Now what this particular provision does is it gives state more power than individual. कि इंडिविजुअल का जो पावर होता है उससे ज़्यादा दे दिया. स्टेट कभी भी जाके इंडिविजुअल को जेल में डाल सकता है. इफ इंडिविजुअल इज पुट इनटू जेल, उसकी लिबर्टी थ्रेटन होती है, एंड लिबर्टी इज गारंटीड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो महाशय हैं, ये जो इसको लेके खड़े हैं, दिस इज अ साइन ऑफ लिबर्टी, एंड इन डेमोक्रेसी दिस इज अ वेरी सेक्रेड राइट. मतलब इसको ना ही
अगर थ्रेटन किया जाए तो अच्छा है। अमेरिका स्टैंड्स अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, दो वो भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है क्योंकि वो सिर्फ उनकी कंट्री के लिए अप्लाई करता है, अपैरेंटली दूसरी कंट्रीज को ज़रूरत नहीं होती, और अपनी कंट्री में ही वो स्नूपिंग करते हैं, विच इज़ एक्चुअली क्वेश्चनेबल। बट लेट्स कम बैक टू अस, व्हाई डज इट मैटर टू अस। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 19। Now this also threaten Article 19, that is your right to dissent, right to freedom of speech and expression, because anything you're saying can be considered as sedition, कि you're acting something against state, and then you can be put into jail. तो ये आपके right to freedom of speech को freedom of speech and expression को hurt कर रहा है। वहीं पे journalism, journalistic right to speak for your right, उनको भी impact कर रहा है। That's why various journalists came up with this kind of opinion, like India Today. इंडिया टुडे ने क्या बोला, इट इज़ रॉन्ग टू ट्रीट क्रिटिसिज्म एज अ सेडिशन। आप हर क्रिटिसिज्म को सेडिशन थोड़ा ना ले सकते हो, तो बहुत ही इंटॉलरेंट गवर्नमेंट है। इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट प्रोटेस्ट इज नॉट अ टेररिज्म, वाई यूएपी एक्यूज गॉट बेल इन द राइट केस, लाइक प्रोटेस्ट है, टेररिज्म थोड़ी ना है। वाई टॉक्ड अबाउट यूज ऑफ यूएपीए अगेंस्ट द जर्नलिस्ट इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द लाइक प्रेस फ्रीडम इन कश्मीर। तो ये सारे इंसिडेंसेस हैं कि यूएपीए के मिसयूज से कैसे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर्ट होता है। Next, it also undermined the federal provision. Now, India क्या है? India is union of state. ये हमारी इंडिया है, इसमें बहुत सारे states हैं, ये सब अपने respective jurisdiction में काम करते हैं। इस सेंटर के लिए यूनियन लिस्ट होती है और स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट होती है, और ये उम्मीद की जाती है कि ये इसके राइट में और ये इसके मैटर्स में अगर ना इंटरफेयर करे तो बेहतर है। अब होता क्या है, पुलिस आपका स्टेट सब्जेक्ट है अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये स्टेट का राइट है पॉलिसी। दिस यूएपीए, इसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि अपने लाइक सेंटर अपनी जुरिस्डिक्शन को छोड़ के स्टेट के जुरिस्डिक्शन में भी ओवरलैप करने लगा है। तो व्हाट हैज़ हैपन, इट इज़ थ्रेटनिंग टू फेडरलिज्म एज वेल। अब आते हैं let's come up with next session, that is possible solution, कि आप इसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। Now suggestion in this regarding is पहली बात, make the Delhi High Court judgment as your base only, कि Delhi High Court has very rightly said कि प्लीज़ अपने jurisdiction में रहें, and every act of dissent or criticism should not be considered as terrorism, थोड़ा सा tolerant हो जाए, which is very important. State should also try to maintain the balance between fundamental right, that is freedom of speech and liberty, versus interest of state. तो इन दोनों के बीच में अगर आप थोड़े से अपने तराजू को इस तरीके से रखें कि थोड़ा सा बैलेंस अगर आप ला सकें तो बेहतर है। ऐसा ना हो कि स्टेट इतनी पावरफुल हो जाए कि बेचारे सिटीजन्स का राइट तो बचे ही ना। एंड देन इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ यूएपीए, मतलब उसको सिर्फ लेटर में मत पढ़ो, उसकी स्पिरिट को देखो और रॉन्गफुली इंडिविजुअल का इंडिकेट मत करो। I hope the entire segment was useful to you. I hope you got everything about UAPA. I hope now you have understood the news in detail. And if this thing was helpful to you, now then stay connected to us. And if you want कि I analyze any news for you, like Twitter पे कुछ चल रहा है या Facebook पे कुछ चल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप चाहते हैं नहीं इसके बारे में ना लोगों के पास अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता है पर बाकी लोगों को नहीं पता है, तो प्लीज़ लीव समथिंग इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक अ न्यूज़ अबाउट इट, और हम उसको हॉलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई भी सजेशन मेरे लिए लगते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई कैन डू टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव एंड सो दैट यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द एंटायर थिंग, देन डू लीव अ कमेंट in the comment section. And for staying with me, thank you so much. Stay at home, stay healthy, stay safe, and stay connected to AQYAS.